faithful servant of God. Caring shepherd. Ambassador of peace and hope. A man of religious harmony. A friend of poor. A visionary educationist. A voice of voiceless. An inspiration for youth. His Excellency Archbishop Dr. Joseph Arshad, Bishop of Islamabad Rawalpindi and President of Pakistan Catholic Bishops Conference. فضیلت مآب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد کی شخصیت ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ ایک عظیم قائد، بلند نظر رہنما، مہربان اور شفیق باپ، اچھے چرواہے، دور اندیش چوپان، قائدانہ صلاحیتوں سے مالا مال، غریبوں کے ہمدرد، نوجوانوں کے راہبر اور دکھی انسانیت کے خیر خواہ ہیں۔ آپ 25 اگست 1964 کو کیتھولک مسیحی خاندان ماسٹر جارج بشیر اور جوزفین جارج کے گھر میں پیدا ہوئے۔ کہانت کے اصول کا آغاز 1981 میں سینٹ میریز سیمنری لاہور سے کیا۔ 1985 سے 1991 تک کرائسٹ دا کنگ سیمنری میں علم فلسفہ اور علم الہیات کی تعلیم حاصل کی۔ آپ 1 مئی 1991 کو شماس اور 1 نومبر 1991 کو کہانت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ 3 جولائی 2013 کو پاپا اعظم فرانسس نے آپ کو بشپ منتخب کیا اور 1 نومبر 2013 کو اسقفی عہدے پر سرفراز ہو کر فیصل آباد ڈائسس کی باغ دوڑ سنبھالی۔ پاپا اعظم فرانسس فرماتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح کلیسیا کے درمیان بشپ کی صورت میں موجود ہوتا ہے، جو ہمہ وقت کلیسیا کی مسلسل حفاظت اور نگہبانی کرتا ہے۔ آپ اچھے چرواہے کی مانند پاکستانی کلیسیا کی ترقی کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں۔ 12 نومبر 2016 کو اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس کے رسولی منتظم مقرر ہوئے۔ بعد ازاں پاپا اعظم فرانسس نے آپ کو 8 دسمبر 2017 میں بطور آرچ بشپ اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس مقرر کیا۔ اب تک آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد نے اپنی کہانت کے 31 سال اور 9 سال بطور بشپ اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ در حقیقت یہ ایک تاریخی عرصہ ہے جس کے لیے ہم خدا باپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بطور آرچ بشپ آپ نے اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس میں بے شمار انقلابی اقدامات اٹھائے، جس سے کلیسیا کی روحانی اور جسمانی ترقی میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ تو آئیے ہم ان تمام روحانی، سماجی، انقلابی کاموں کا جائزہ لیتے ہیں جس کے لیے خدا نے آرچ بشپ کو چنا اور مقرر کیا۔ میں اپنی طرف سے راولپنڈی اسلام آباد ڈائسس کے تمام کہنانہ برادری، سسٹر صاحبات، مناظر صاحبان، سبنیرین اور مومنین کی طرف سے آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد کو ان کی 9ویں ایپسکوپل اور 31ویں پریسٹلی اینیورسری پر دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جیسے کہ سب کو معلوم ہے کہ اس سال کو ہم بابرکت کہتے ہیں، اور اس سال میں ہم نے دیکھا کہ بشپ صاحب کی بڑی کوششیں اور بھرپور کوششوں سے کیتھیڈرل کی رینوویشن کا کام شروع ہوا ہے، کیونکہ یہ کام کافی سالوں سے رکا ہوا تھا اور کیتھیڈرل کو ایک اچھی رینوویشن کی ضرورت بھی تھی۔ تو خدا کا فضل ہے کہ جس نے بشپ صاحب کی رہنمائی کی اور مختلف وسائل کے ذریعے سے اور مالی مدد کے ذریعے سے آج ہمارا کیتھیڈرل جو ہے وہ رینوویشن کے آخری مراحل میں پہنچ چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نئے بشپ ہاؤس کی بنیاد بھی رکھی گئی اور
خدا ان کا شکر ہے کہ اس سال کے آخر تک بشپ ہاؤس کی تعمیر بھی مکمل ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑا اقدام ہے بشپ صاحب کا، اور جتنی نزدیک سے بشپ صاحب کو دیکھا ہے کہ ان دونوں کاموں کے لیے انہوں نے اپنی محنت اور دن رات محنت کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ان کو یہ کامیابی عطا کی۔ فیتھفل سرونٹ آف گاڈ، خدا کا وفادار خادم، اپنی راہوں میں اس کو پہچان تو وہ تیرے رستوں کو ہموار کر دے گا۔ امثال 3:6 آیت۔ آپ کی زندگی کھلی کتاب کی مانند ہے۔ آپ کی شخصیت کا ہر ایک پہلو خدا کی وفاداری اور کلیسیا کی خدمت سے بھرا ہوا ہے۔ 1 نومبر 1991 کو تمام مقدسین کی عید کے مبارک موقع پر آپ کو کہانت کے مقدس عہدے پر فائز کیا گیا۔ آپ نے مقدسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی کاہنانہ بلاہٹ میں ثابت قدم رہتے ہوئے کہانت کے 31 سال مکمل کیے، اور بطور بشپ اور آرچ بشپ چوپانے اعلیٰ ہوتے ہوئے بڑی وفاداری اور فرما برداری کے ساتھ 9 سال مکمل کیے۔ آپ مقدسہ ماں مریم سے گہری عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، اسی لیے آپ نے اپنے کوٹ آف آرم میں 7 کونوں والے ستارے کا انتخاب کیا، جو مقدسہ ماں مریم کا نشان ہے۔ یسوع المسیح کی بھی یہی تعلیم ہے۔ مقدس متی کی انجیل اس کے 22 باب میں حکم عظیم یہی ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، جان، عقل، طاقت سے پیار کر، اور اپنے ہمسائے یعنی اپنے جیسے انسان کو اپنی مانند پیار کر۔ اور ہمارے بشپ صاحب اس حکم عظیم پر منوان عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ روحانی طور پر تو وہ ایک اپنے اندر جو ہے وہ بہت اہم شخصیت ہے، جو یسوع المسیح کی انجیل کی منادی کرتے ہیں، بہترین مقرر ہیں، لیکن اس کے روحانی ضروریات کے ساتھ ساتھ وہ دنیاوی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو بھی پورا کر رہے ہیں۔ ان میں اگر آپ دیکھ لیں، صحت، تعلیم، گھر یعنی چھت، تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحت کے معاملے میں جب ہم دیکھتے ہیں ہماری ڈائسس اسلام آباد اور راولپنڈی، تو اس میں ایک جنرل ہاسپٹل، میں وہاں سے شروع کرتا ہوں۔ جنرل ہاسپٹل ہے، اس کا نام ہے فاطمہ ہاسپٹل سرگودا۔ وہ کئی سالوں سے وہ اپنی خدمت سر انجام دے رہا ہے۔ پہلے ادھر سسٹرز جان آف گاڈ سسٹرز تھی، لیکن ان کے جانے کے بعد اس ہاسپٹل کی بدحالی یا زوال کا عمل شروع ہو گیا۔ اور جب بشپ صاحب اس ڈائسس میں آئے، جب آپ نے اس ڈائسس میں قدم رنجہ فرمایا، تو اس وقت اس ہاسپٹل کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ تو آپ نے سب سے پہلے تو اس ہاسپٹل کی طرف توجہ دی، اس کو اثر نو جو ہے وہ اس کی تعمیر اور تشکیل دی، اور اس میں آپ نے جو ہے وہ ڈومینیکن سسٹرز کو بلایا، ان کے ہاتھ میں ایڈمنسٹریشن دی، اور پھر ان کا جو سسٹرز کا کانوینٹ ہے اس کی رینوویشن کرائی۔ ہاسپٹلز کے دوسرے جو شعبہ جات ہیں ان میں جو ہے وہ نمایاں تبدیلیاں لائی، اور اب وہ خدا کے فضل سے ہاسپٹل ٹھیک چل رہا ہے۔ اس کے بعد پنڈی آتے ہیں۔ راولپنڈی میں سینٹ جوزفس ہاسپس ہے، اور یہ میں آپ کو خصوصی طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں سینٹ جوزفس ہاسپس واحد ہاسپس ہے، اور کہیں نہیں ہے پاکستان میں۔ اور خدا کے فضل سے یہ 1964 سے خدمت سر انجام دے رہا ان لوگوں کی جو قریب المرگ ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، جو لا علاج ہے، جن کے گھر والوں نے بھی ان کو دھتکار دیا ہے۔ A caring shepherd، اچھا چرواہا میں ہوں، اور اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں، اور وہ میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں۔ آرچ بشپ جوزف ارشد ایک ایسے چوپان ہیں جو دن رات اپنے گلے یعنی کلیسیا کی روحانی تعلیم و تربیت اور بیداری کے لیے سرگرم عمل رہتے ہیں۔ ساکرامنٹوں کی ادائیگی ہو یا پاسبانی دورہ ہو، گرجا گھروں کی برکت ہو یا زیارت مقدسہ مریم، نئے پیرشز کا قیام ہو یا مذہبی جماعتوں کی ڈائسس میں آمد، شعبہ صحت ہو یا تعلیم کا میدان، آپ زندگی کے ہر شعبے میں ایک اچھے چرواہے کی طرح
कलीसिया के दरमियान मौजूद होते हैं। यूँ तो खुदा ने हमारी डायसिस को आला तरीन चौपाने आला से नवाजा है, और अगर हमारी डायसिस में अब तक तरक्की हुई है तो ये हमारे बिशप साहिबान की मरकूली मेहनत है। लेकिन आज मैं ख़ास तौर पे अपने चौपाना आला बिशप साहब के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जब से ये डायसिस में तशरीफ लाए हैं, इन्होंने तो रंग ही बदल डाला है और बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। सबसे पहले जो काम इन्होंने सबसे अच्छा किया मेरी नज़र में वो ये है, कैटेकिल सेंटर को ऑफिस दिया, नया बना के ऑफिस दिया। इस वजह से इनकी एक्टिविटीज ज़्यादा भी हो गई हैं और इनका मेयार भी बुलंद तर हो चुका है। और यहाँ पर साथ ही इन्होंने मसीह तालीम को फ़रोग़ देने के लिए हौसला अफजाई की है। कुछ हमारे फादर साहिबान की जिन्होंने किताबें लिखी हैं मसीह तालीम के बारे में और ईमान के फ़रोग़ के लिए, जिनमें फादर फिबिन पॉल और फादर कामरान डैनियल की बुक्स का आपने जिक्र। एम्बेसडर ऑफ पीस एंड होप, अमन और उम्मीद का सफ़ीर। फजीलतमाब आर्च बिशप ने अपनी उस कफ़ियाई मखसूसियत के मुबारक मौका पर अपनी ज़िंदगी के लिए जिस मकसद का चुनाव किया वो अमन और उम्मीद है। कलीसियाई, कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर आपने हमेशा अमन और उम्मीद को फ़रोग़ देने में अपना कलीदी किरदार अदा किया है। आपकी अमन के फ़रोग़ के लिए खिदमात को सराहते हुए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अमन के अवार्ड से आपको नवाजा गया। मैं जीसस एंड मेरी की तमाम सिस्टर्स, ICS फैमिली इस्लामाबाद कॉन्वेंट स्कूल FH4 की तरफ से तक़द्दस मुआब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद को उनकी कहानत की 31वीं और बतौर बिशप नामी सालगिरह के मौके पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ। इस अरसे में उन्होंने खुदावंद के वफ़ादार चरवाहे के तौर पर मसीही कौम की रहनुमाई की और उनके ईमान को मजबूत करने की हर मुमकिन कोशिश की। मैं आपकी तमाम तर सरगर्मियाँ, खूबियाँ और खिदमात तो बयान नहीं कर सकती, लेकिन चंद बातों पर रोशनी डालना चाहूँगी जिन्होंने मुझे मुतासर और इंस्पायर किया। बतौर चौपाने आला अपने हर तबके के लोगों को मुतासर किया और उनके रूहानी और दुनियावी ज़िंदगी को तक़वियत दी। आपने कलीसिया को हमेशा मुश्किल हालात में यकजा रखा। आपके चौपानी खतूत तकारीर मसीहों के ईमानी, रूहानी और दुनियावी ज़िंदगी को मजबूत बनाने का बेहतरीन सबूत है। आपने तमाम कौमी और बैनुल अक़वामी त्यौहार मनाते हुए मीडिया के ज़रिए अपना पैगाम सब तक पहुंचाया, चाहे यौम दफ़ा हो या जश्न आज़ादी। आपने अपनी तकरीबात, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स और TV इंटरव्यू पर कौम के खातिर कुर्बानियाँ देने वाले शहीदों को याद किया। अगर हम तालीमी और सेहत के अदारों की बात करें, आप इन अदारों को बहुत आगे लेकर गए और एक मजबूत और मुनज़्ज़म तालीमी निज़ाम कायम करने के लिए प्रोफेशनल्स का इंतखाब किया। तक़द्दस मुआब आर्च बिशप जोसेफ अरशद, बिशप ऑफ रावलपिंडी इस्लामाबाद डायसिस। आज मैं बिशप साहिब की उनकी 31वीं कहनाना और नामी उस कफ़ियाई खिदमात की सालगिरह पर दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ और दुआगो हूँ कि खुदावंद खुदा उनको इसी तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे, ताकि वो इसी दिल जमी से कलीसिया की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करते रहें और दबे और कमज़ोर लोगों की आवाज़ बन सकें। मैं इस मौका पर उनकी तालीमी और समाजी खिदमात को भी सराहना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि वो मुल्क और कौम के लिए हमेशा जोश व जज्बे से अपनी खिदमात पेश करते रहेंगे। खुदावंद खुदा हमेशा उनको अपने फ़ज़ाइल और बरक़ात से माला माल करता रहे। A man of religious harmony। आर्च बिशप जोसेफ अरशद साहिब ने जब से इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस की जिम्मेदारियां संभाली हैं,
तब से ही आपने बैनुल मज़ाहिब हमांगी को फ़रोग़ देने के लिए दिन रात एक कर दिया है। आपने मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले मजहबी रहनुमाओं को एक जगह पर यकजा कर दिया और डायसिस में मजहबी हमांगी को रोशन ख्याली के साथ फ़रोग़ दिया। आपने तमाम मज़ाहिब के दरमियान दूरियों को ख़त्म करने, एक दूसरे के मज़ाहिब और मजहबी रसूमात को इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखने पर ज़ोर दिया। आपने डायसिस की हदूद में खिदमत करने वाले दीगर कलीसियाओं के रहनुमाओं से कलीसियाई रवाबत को मजबूत करने में कलीदी किरदार अदा किया, जिसके लिए डायसिस के मुख्तलिफ गिरजा घरों में बैनुल कलीसियाई इत्तेहाद और मजहबी हमांगी जैसे मौज़ूआत पर मुख्तलिफ किस्म के सेमिनार और दवाइया तकारीब का इनकाद किया गया। यही वजह है कि दीगर मज़ाहिब के लोग और दीगर कलीसियाओं के रहनुमा आपको इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखते और आपकी बातों पर तवज्जो देते हुए मुल्क और कौम की तरक्की और कलीसिया की तरक्की के लिए आपके साथ खड़े हैं। हमारे जो रूहानी पेशवा है फजीलत माब आर्च बिशप ये अमन के पैगंबर हैं, अमन के लिए बहुत काम कर रहे हैं, क्योंकि हर मज़हब जो है वो अमन की तालीम देता है। तमाम मुक़द्दस किताबें, तमाम अंबिया कराम जो हैं वो अमन का पैगाम देते हैं। इसी तरह हमारे रूहानी पेशवा भी जो हैं ये भी अमन को फ़रोग़ देने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। तो इसमें हमें ये फ़ायदा हो कि अभी जो हमारी कमेटी है इसमें जो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, मसलक और अक़ीदे के लोग हैं, इन सब में हमें बैठने का मौका मिला है। हमारे जज्बात वो जानते हैं, हम उनके बारे में जानते हैं और एक दूसरे के साथ मोहब्बत और इत्तेहाद के साथ रहते हुए अपने माशरे में अमन, सुलह, सलामती के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि हर साल बिशप जी जब उनकी सालगिरह होती है, देखें लोग बड़ा एहतमाम करते हैं, लेकिन वो हर साल हमारे पैरिश में जो मदर टेरेसा की सिस्टर हैं उनके पास जो मफलूज लोग हैं, जो बेसहारा हैं, जो गरीब हैं, जो बीमार हैं, उनके साथ हर साल वो अपनी सालगिरह आके मनाते हैं, उनके साथ अपनी मोहब्बतें, अपनी खुशियाँ बांटते हैं, वो सालगिरह जो है सेलिब्रेट करते हैं। A friend of poor, गरीबों का दोस्त। फजीलत माब आर्च बिशप का मकसद हयात गरीबों, यतीमों और गमज़दों के लिए उम्मीद का पैगाम लाना है। आप हर वक्त अपनी कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए परेशान रहते हैं, जिसके लिए आपने बेघर ज़रूरतमंद मोमिनीन के लिए चकवाल और चक्री में हाउसिंग स्कीमों का इजरा किया, स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए तालीम व तरबियत और किताबों की फराहमी को मुमकिन बनाया, बेरोज़गार और मोहताज अफराद की मदद की ताकि वो अपने पाँव पर खड़े हो सकें, कोरोना वायरस से मुतासरा ख़ानदानों और सलाब-ज़दगान की बरवक्त मदद की और उन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हौसला दिया, जबकि आप अपनी ज़िंदगी के ख़ास दिन का आगाज़ यानी पैदाइश और कहानत की मखसूसियत के दिन को गरीबों के साथ मनाकर शुरू करते हैं। हमारे फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद, जिनको खुदा ने अपनी कलीसिया की खिदमत के लिए चुना है, खुदा ने उनको सुलेमान बादशाह जैसी हिकमत भी अता की है, जिसकी वजह से वो हमारी डायसिस में हमेशा अपनी कलीसिया की ईमान में तरक्की के लिए काम करते हैं और हमारी डायसिस दिन दुगनी रात चौगनी ईमान में तरक्की कर रही है। ख़ास तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब से फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद हमारी डायसिस में अपनी उसकफ़ियाई खिदमात को सर अंजाम दे रहे हैं, तो हम देखते हैं कि हमारी डायसिस में बच्चे, नौजवान, बूढ़े और ख़ानदान ईमान में तरक्की कर रहे हैं। और इसमें बिशप साहब ने जो डायसिस में तरक्याती मंसूबे शुरू किए हैं, जिसमें ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए CSS के इम्तहान का इनकाद है, जिसमें नौजवानों को तरक्की उनकी तैयारी करवाई जाती है।
ताकि वो CSS के इम्तहानात में कामयाब होकर जो वो आला ओहदों पर फाइज हों। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिशप साहब की खिदमात जो हमारी डायसिस में है, इन खिदमात के दौरान हमारी डायसिस में नए पैरिशेस का जो है वो नए पैरिशेस बने हैं। इसके साथ साथ नए चर्चेस तामीर किए गए हैं और अभी सेंट जोसेफ कैथेड्रल लाल कुट्टी रावलपिंडी की जो रेनोवेशन है उसका काम बिशप साहब ने करवाया है। An inspiration for youth. आर्चबिशप डॉक्टर जोसेफ अर्शद का किरदार हमेशा से मसीही नौजवानों के लिए मशलिरा रहा है। आपने नौजवानों को कौमी सोच देने के लिए यूथ कांग्रेस का बाकायदा आगाज़ किया। इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस में क्रिकेट टूर्नामेंट और SIT टेक्निकल इंस्टीट्यूट की तजदीद नौजवानों के लिए तरक्की की राह को हमवार करना है। आपने हमेशा अपनी कौम के नौजवानों को हौसला और उम्मीद दिलाई है ताकि वो ज़िंदगी में तालीम और हुनर को सीख कर अपनी कौम की कामयाबी का सबब बन सकें। मेरा नाम अलेक्जेंडर विलियम है। मैं सेंट जोसेफ कैथेड्रल का मेंबर हूँ और आज मुझे बहुत खुशी है कि बिशप साहब को 9 साल हो गए बिशप बने हुए और उन्होंने जब से आर्च बिशप अर्शद जोसेफ साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, उन्होंने नौजवानों के लिए और अपने कलीसिया के लिए बेशुमार काम शुरू किए, बेशुमार प्रोग्राम शुरू किए। नौजवानों के लिए स्पेशली उन्होंने स्पोर्ट्स के प्रोग्राम शुरू किए हैं पिंडी इस्लामाबाद में और नौजवान इससे बहुत खुश हैं, जो उनकी सेहत तंदुरुस्ती और आगे तरक्की का बाइस बन सकते हैं। तो तालीम पर बहुत तवज्जो दे रहे हैं। बार बार वो ये ऐलान भी करते हैं कि मसीही नौजवान लड़कों और लड़कियों को तालीम की अशद ज़रूरत है और वो आगे आएँ और तालीम हासिल करें और पेरेंट्स को भी वो नसीहत करते हैं। और जब भी वो चर्च में पाकमास करवाते हैं उसके बाद वो तमाम लोगों से मिलते हैं। मेरा भी बड़ा तजर्बा है उनसे। जब मैं उनसे मिला हूँ मैंने उनसे बरकत चाही और वो मेरी ज़िंदगी में एक मुजज़ा बनकर सामने। वॉइस ऑफ वॉइसलेस। पूरी दुनिया में जब भी कहीं पर इंसानियत के साथ कोई जुल्म और तशद्दुद होता है तो आपने हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद किया है। मसला कश्मीर हो या यूक्रेन में जंग, आरजू राजा केस हो या ज़ैनब कत्ल केस, आपने बिला तफरीक अमन और इंसाफ की पुकार को जिंदा रखा है। आपने नौजवानों को सोशल मीडिया ट्रेनिंग देने के मुख्तलिफ सेशंस का आगाज़ किया, जिसके ज़रिए नौजवानों की तरबियत की गई ताकि वो सोशल मीडिया के ज़रिए खुदा की बशारत कर सकें। इसके साथ साथ आपने आबी मारिया चैनल का भी आगाज़ किया, जिससे न सिर्फ नौजवानों की हौसला अफजाई हो रही है बल्कि उनकी रूहानी तरबियत भी हो रही है। इन तमाम कामों का बयान करते हुए मैं दुआ गो हूँ कि मेरा खुदावंद फजीलत माब आर्चबिशप डॉक्टर जोसेफ अर्शद को और ज़्यादा बरकत दे ताकि मसीही नौजवानों के लिए और दिलजोशी से काम करते रहें और हम सब के लिए नमूना पेश करते रहें। मसीह हमारे खुदावंद के नसीब से। A visionary educationist। आप मसीही कौम के नौजवानों को आला तालीम याफ्ता और हुकूमती ओहदों पर फाइज देखना चाहते हैं। इस ख्वाब की ताबीर के लिए अमली तौर पर आपने CSS अकेडमी का इजरा किया, जो पाकिस्तान में पहली मसीही अकेडमी है। आपने कैथलिक बोर्ड ऑफ एजुकेशन को मज़ीद मुस्तहकम और फाल बनाने के लिए बेहतरीन बोर्ड मेंबर्स का चुनाव किया। गरीब और मुस्तहिक बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए बॉयज़ हॉस्टल को दोबारा से खोलने का ऐलान किया। मैं एक हेल्थ विजिटर हूँ और मुझे उन्होंने बहुत रहनुमाई दी ताकि मैं लोगों में जाके काम कर सकूँ। हमें सबसे पहले उन्होंने एक ट्रेनिंग दिलवाई जिसका जो हम लोगों ने टेक्सला से कंप्लीट की। ये 1 ईयर की कंप्लीट हम लोगों ने ट्रेनिंग के बाद हम लोगों को यहाँ पे कम्युनिटी में लोगों के घरों में भेजा गया ताकि हम लोग हेल्थ विज़िट कर सकें, ताकि हम लोगों के बारे में जान सकें वो किस तरह से हैं और किस हालात में हैं। हम लोग उन लोगों को 3 तरीक़ों से उनकी मदद कर सकते हैं, एक मेंटली तौर पर, एक स्पिरिचुअल तौर पर और फिज़िकल तौर पर। हम इन तीनों तौर पर उन लोगों की रहनुमाई या उनकी मदद करते हैं।